का एक जहां है। डियर कम स्कूल, डियर कम स्कूल, नूर का कारवां है। डियर कम स्कूल, डियर कम। Assalamualaikum class, how are you all? I hope you would be in the best condition of your health. Today is 29th March 2021. We are going to start our lecture of English A, and which is going to commence with the unit number 1, which is the title of which is Light in the Night. I hope you would have gone through this unit a bit in your class as well. You know the idea, you know the theme of the unit, and that this unit is actually about the street lamps which were used frequently in Europe, in London especially, and the effects they had in the night and all that. So I am going to start with the word sentences. Although you have gone through the word sentences in your class as well, but I am going to repeat it for you because most of the students wouldn't have noted down the words sentences because you were supposed to come one day and the other day was your off. So without any kind of long details, I am going to start word sentences and comprehension. Comprehension is a new thing for you people because we haven't gone through in this lecture in the class. So I'm going to start here. I'm going to commence with the word sentences. The first word is lamp. Okay, one thing more, I am going to clarify it for you people because word sentences in while making word sentences you are not bound to use the same sentences which I have given to you people. आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल यही सेम सेंटेंसेस लिखें. You can make your own sentences, but the condition you have to follow is that the sentences which you make should be correct grammatically, the spellings mistake shouldn't be there at all, and the sentence should be meaningful. ठीक है, तो by following these rules you can make your own sentences as well. So here I have given you some sentences. Note it down, and you have to write all the sentences, all the work in your notebooks as well. The first word is lamp. The sentence which I have made for the lamp, the word lamp is the girl shut off her lamp. लड़की ने अपना लैम्प बंद किया. The word switched off is also used to shut off the lamp, यानी इसकी जगह आप switch off भी लिख सकते हैं. there is no problem in that. and went to sleep, यानी कि उसने अपना लैम्प स्विच ऑफ किया और सोने के लिए चली गई. द नेक्स्ट वर्ड इज़ रेगुलरली, यानी कि बाकायदगी से, बिल्कुल अच्छे तरीके से, यानी कि कोई बग़ैर किसी गैप के. द स्ट्रीट लैम्प्स आर लिट रेगुलरली. स्ट्रीट लैम्प्स को, यानी गली के जो लैम्प्स होते हैं, उनको बाकायदगी से जलाया जाता है, रोशन किया जाता है. नेक्स्ट वर्ड है लेडर. इसको रस्सी, ये होता है सीढ़ी. द स्टेयर्स विच यू यूज़ कॉमनली इन योर लैंग्वेज आर फिक्स्ड एट अ प्लेस. ठीक है ना, वो एक जगह पे फिक्स होती हैं सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए. लेडर इज़ ऑल्सो गिव्स द वर्क ऑफ स्टेयर्स बट इट इज़ मूवेबल. ठीक है, ये भी सीढ़ी ही होती है लेकिन इसको हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. तो द चिल्ड्रन आर क्लाइंबिंग अप द लेडर. बच्चे जो है वो सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं. दिस इज़ द सेंटेंस ऑफ लेडर. यू कैन मेक योर ओन सेंटेंस एज वेल. सो द नेक्स्ट सेंटेंस है स्ट्रीट्स. द स्ट्रीट्स लुक्ड वेरी क्लीन आफ्टर रेन, यानी बारिश के बाद जो गलियां हैं वो बहुत साफ़ सुथरी दिखाई दी. वर्क, काम, यानी कि इट्स अ नाउन, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. काम यानी कि इसको हम फील कर सकते हैं काम को, but we can't touch it. It doesn't have any kind of you can say physical form, or neither we can see it, but we can feel it कि काम है. ठीक है, और टू वर्क इज़ एन वर्ब, यानी कोई काम करना इज़ वर्किंग इज़ वर्ब, एंड वर्क जो है वो यहाँ पे एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ हुआ है. तो वन हैज़ टू वर्क हार्ड. कोई भी पर्सन है उसको सख्त मेहनत करनी पड़ती है फॉर सक्सेस, कामयाबी हासिल करने के लिए. सिटी, शहर को कहते हैं. द सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री आर हेवीली पॉपुलेटेड. हमारे मुल्क के जो शहर हैं वो बहुत हेवीली पॉपुलेटेड, यानी उनमें काफ़ी ज़्यादा आबादी है. नेक्स्ट सेंटेंस इज़ लाइट, LIGHT. तो उसका सेंटेंस है लाइट इज़ इसेंशियल फॉर प्लांट्स. रोशनी बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए. सो
Okay students, now I'm going to switch towards your comprehension. This is I am sure that you would have opened your textbooks as well. The comprehension is at your page number 10 of textbook, and I'm going to start a comprehension exercise, as you can see in the picture as well. There are some questions which we are supposed to do. We are not supposed to do all the questions. Some selective questions you have to do, and I have marked those selected questions. Selective questions जो हैं वो आपके वही उन्हीं का आंसर मैं करवाऊंगी. So you shouldn't worry about the rest of the questions. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन है, बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स यानी स्ट्रीट लैम्प्स से पहले वर इंट्रोड्यूस, जब वो नहीं इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, व्हाट डिड पीपल डू ऑन क्लाउडलेस मूनलिट नाइट्स, तो लोग क्या करते थे. क्लाउडलेस नाइट्स का मतलब है बादलों से साफ जो रातें थी, यानी क्लियर नाइट्स जिनमें आसमान वाज़ेह होता था. तो उनमें वो क्या करते थे, जब रोशनी मून की होती थी फुल और बादल भी नहीं होते थे. और इसी क्वेश्चन का दूसरा उन्होंने पार्ट है, वाई डिड दे नीड टू वेट फॉर दीज वेदर कंडीशंस, यानी लोगों को इस तरह के मौसमी हालात का वेट क्यों करना पड़ता था. तो आप यू हैव रेड इट इन योर रीडिंग एज वेल. आपको पता ही है कि क्योंकि उस दौर में कोई रोशनी का सोर्स नहीं होता था, तो चाँद से ही रोशनी हासिल करते थे. तो जिस दिन चाँद क्लियर नहीं होता था या आसमान पे बादल होते थे, तो पीपल वर अनएबल टू कैरी ऑन विद देयर वर्क. तो वो इसका आंसर है, बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड, इससे पहले कि स्ट्रीट लैम्प्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता, पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मूनलाइट ऑन क्लाउडलेस नाइट्स, यानी लोग जो हैं उस बादलों से साफ जो रातें होती थी उनमें चांद की रोशनी का फ़ायदा उठाते थे, एंड गो आउट टू सोशलाइज, और फिर बाहर सोशलाइज करने यानी घूमने फिरने, आउटिंग करने या कुछ खाने पीने निकल जाते थे. और जो उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि वाई डिड दे नीड टू वेट फॉर द वेदर कंडीशन, उन्हें इस तरह की मौसमी कंडीशंस का वेट क्यों करना पड़ता था. यानी जैसे आज के दौर में हमें वेट नहीं करना पड़ता, वी आर फ्री टू गो एवरी टाइम इन द नाइट आउटसाइड, लेकिन दे हैड टू वेट. वाई, बिकॉज दे हैड टू वेट फॉर मून, उन्हें चांद का इंतज़ार करना पड़ता था, एज देयर वॉज नो सोर्स ऑफ लाइट इन द नाइट, क्योंकि रात के वक्त सोर्स कोई नहीं था रोशनी का. लेकिन उन डेज में लंदन में स्ट्रीट लैम्प्स इंट्रोड्यूस्ड हो चुके हुए थे, लेकिन इनसे पहले यानी स्ट्रीट लैम्प्स के इंट्रोडक्शन से पहले लोगों के साथ ये प्रॉब्लम थी कि उनको सिर्फ चांद की रोशनी अवेलेबल थी रात के वक्त. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बी क्वेश्चन भी इसमें सी, बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस. जी, बी क्वेश्चन है कि स्ट्रीट लैम्प्स के इंट्रोडक्शन से पहले व्हाट वर द डेंजर्स दैट पीपल फेस्ड इफ़ दे वेंट आउट एट नाइट, यानी अगर लोग रात के वक्त बाहर जाते थे तो स्ट्रीट लैम्प्स से पहले, रोशनी से पहले उनको क्या डेंजर का सामना करना पड़ता था. तो इसका आंसर है, पीपल कुड ट्रिप, वो लड़खड़ा जाते थे, फॉल गिर जाते थे, एंड इंजर और ज़ख्मी हो जाते थे, देमसेल्व्स अपने खुद को ज़ख्मी कर लेते थे, और ड्राउन या डूब जाते थे, इफ़ दे फेल इनटू वाटर, यानी अगर गलती से पानी में गिर गए, दरिया में गिर गए तो डूब भी सकते थे. बी अटैक्ड, उन पे अटैक भी हो जाता था, और रोब्ड या उनको लूट लिया जाता था, यानी चोर उचक्के उनको लूट लेते थे. ये सारी जो डेंजर्स थे ये सारे रोशनी ना होने की वजह से थे. तो इससे पहले जब तक स्ट्रीट लैम्प्स नहीं आए थे तो अंधेरे में लोग अगर बाहर निकलते तो उनको इन नुकसानात का सामना करना पड़ता था. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट वर सम ऑफ द अनप्लेजेंट एस्पेक्ट्स. ओके, व्हाट वर सम ऑफ द अनप्लेजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्ली ऑयल लैम्प्स, यानी शुरू में जो ऑयल लैम्प्स इंट्रोड्यूस हुए थे उनके कुछ नाखुशगवार एस्पेक्ट्स भी थे, और वो क्या थे, यानी उनमें ख़राबियाँ क्या थी, खूबियाँ तो थी लेकिन ख़राबियाँ क्या थी. अच्छा जी, उसका आंसर है, द ऑयल यूज़ टू लिट द लैम्प. सबसे पहले तो जो उन लैम्प्स को यूज़ लिट करने के लिए, लाइटन करने के लिए, रोशन करने के लिए जो उनमें ऑयल यूज़ होता था, गेव ऑफ एन अनप्लेजेंट स्मेल, उसमें से एक नाखुशगवार स्मेल आने लग पड़ती थी आफ्टर बर्निंग, जलने के बाद, यानी कुछ देर जब जलता था तो उससे स्मेल आने लग जाती थी, ऑयल अच्छी स्मेल नहीं देता था वो. मोर ओवर, इसके अलावा दोज लैम्प्स नीडिड टू बी केयरफुली क्लीन्ड, उनको बड़ी केयरफुली एहतियात से साफ़ करना पड़ता था, एंड वेल मेंटेन्ड, और उनका अच्छे से देखभाल करनी पड़ती थी, सो दैट द ग्लास डिडंट गेट डर्टी, ताकि उनका शीशा गंदा ना हो जाए, क्योंकि अगर शीशा या ग्लास डर्टी हो जाता तो उसमें से रोशनी बाहर क्लियर नहीं आ पाती थी. ठीक है.
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट पावर्स मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स, यानी आजकल के जो मॉडर्न गलियों में स्ट्रीट लैम्प्स लगे हुए हैं उनको कौन सी चीज़ पावर प्रोवाइड करती है, कौन सी चीज़ उनको रोशन करती है। तो इसका आंसर है, ये एज क्वेश्चन है आपका, नहीं एज नहीं है, ये आई है, सॉरी मिस्टेकली मैंने एज लिख दिया, लेकिन ये आई है, मेरा ख्याल मैंने इंडिकेट किया हुआ है विद थंबनेल, ठीक है। तो आपने इसको, आई क्वेश्चन है, व्हाट पावर्स मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स, एज को आपने स्किप कर देना है। इसका आंसर है, मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। जो मॉडर्न गली स्ट्रीट लैम्प्स हैं उनको बिजली से रोशन किया जाता है। दिस इज़ कॉमन फैक्ट, यू नो, इन द ऑन द रोड्स, इन द स्ट्रीट्स, ऑल द लैम्प्स आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। So the next question is from your another part. This part is these questions are more difficult, यानी ये थोड़े से मुश्किल हैं। डिस्कस ये इस पार्ट में से लिया गया है। दैट द क्वेश्चन नंबर इज़ जे, उसका क्वेश्चन नंबर जे है, और ये उन्होंने कहा है कि ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि वो कॉम्प्रिहेंसिव आंसर रिक्वायर्ड है। ओके, व्हाट डिड द जर्मन टूरिस्ट इन लंदन, जर्मन टूरिस्ट, एज यू नो कि एक जर्मन टूरिस्ट आया था जिसने अपना रिमार्क्स दिए थे लंदन के बारे में से, उसने क्या कहा, वॉज द इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रीट लैम्प्स, यानी उसने इन स्ट्रीट लैम्प्स के बारे में क्या कमेंट पास किया, ये आपने बताना है। अच्छा जी, आंसर जे है, द जर्मन टूरिस्ट इन लंदन, लंदन में सेड, उसने कहा दैट ड्यू टू न्यूमरस स्ट्रीट लैम्प्स के, मैंने लंदन में देखा है बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लैम्प्स लगे हुए हैं, द सिटी सीम्ड लाइवली, इस वजह से जो शहर है वो बहुत लाइवली, लाइवली का मतलब होता है ज़िंदगी से भरपूर। आप देख सकते हैं अंधेरा होता है और उजाला होता है, बड़ी फ़र्क होता है इसमें। अंधेरा जब होता है हर चीज़ खामोश होकर एक साइड पे बैठ जाती है, एक ज़िंदगी का एहसास नहीं होता, ज़िंदगी का एहसास एक रोशनियों से होता है, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लैम्प्स गलियों में चलते हैं तो रोशनियों की वजह से एक लाइवलीनेस का एहसास होता है, एक ज़िंदगी का एहसास होता है। एंड हैड द अपीयरेंस, और ऐसा लगता है रात के वक्त शहर में कि जैसे ऑफ अ फेस्टिव इल्यूमिनेशन, जैसे यहाँ पे कोई बहुत बड़ी ज़ियाफ़त और बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा है, यानी बड़ी खुशी का अहतमाम किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ शादियों के वक्त लाइटिंग होती है घरों पे, रेस्टोरेंट्स के बाहर, तो वो एक उस चीज़ को देख के इंसान को ऐसा लगता है जैसे बहुत लाइवलीनेस और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई इवेंट चल रहा है। तो वो कहता है कि कॉमन नाइट्स में भी, यानी उसने ये बात कही जर्मन टूरिस्ट ने, कि यहाँ पे स्ट्रीट लैम्प्स की वजह से आम रातों में हर रात को यही फीलिंग आती है कि जैसे शहर में कोई पार्टी चल रही है और बड़ी लाइवली और बड़ा अच्छा शहर का जो है वो अपीयरेंस लगती है। So these were your question answers and word sentences, and I hope you would have understood it, and you have to learn all these, you have to write it down in your notebooks, and above all you have to do its homework as well. Thank you so much.